सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को पता है मैंने लिसनिंग की नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है एंड दिस इज द न्यू आईडीपी लिसनिंग टेस्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड फ्रॉम आईडीपी। एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये लिसनिंग को नहीं किया होगा आज तक एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कैम्ब्रिज जो आप अभी तक करते आए हो। ये सेक्शन 3 की डिस्कशन हम करने वाले हैं आज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक and these are matching the information types of questions and exam में it is for sure कि at least 5 से लेके 7 तक ये मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे एंड कईयों को इसमें प्रॉब्लम आती है एंड टिप टू स्कोर मिनिमम 8 बैंड इन योर आईएएस लिसनिंग इज दैट यू मस्ट गेट टू नो कि ये क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आपने इसको इजी वे में करना कैसे है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपने इसको easiest way से कैसे करना है। But before I start with the explanations, I will play the audio. Get your stationaries ready. You will have to attempt these questions first of all from 21 to 30 and मुझे comment में जरूर बताना सारे क्वेश्चन सही किसके थे एंड आपका कितना कितना स्कोर आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। So now I'm going to play the audio. Listen to the audio very carefully. ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले ही हैं एंड थोड़े से कॉमन सेंस वाले हैं, दिमाग लगाओगे तो इजीली हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑडियो। You will hear a counselor talking to a student about postgraduate degree courses. आपके पास टाइम है टू रीड द क्वेश्चंस को रीड कर लो एंड यहाँ पे 2 टिप्स दे रही हूँ। सबसे टिप नंबर 1 इज जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है बॉक्स के अंदर, जब वो इनको रेफर करेगा तो हमेशा सिनोनिम्स को यूज करता है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी वो सिनोनिम्स को यूज कर सकता है दोनों जगह पर। टिप नंबर 2 इज जैसे ही आप किसी का सुनो, फॉर एग्जांपल इकोलॉजी का बोला तो साथ में शॉर्टकट में नोट्स जरूर। Well done for completing your degree, Peter. Were you pleased with your results? I was a little disappointed I didn't get the highest grade overall, but I did well in my favourite subjects. I got a first-class grade in those subjects. I'm pleased with that. What were they? Oh, that was ecology and economic botany. I wasn't very good at biostatistics or plant physiology. Plant physiology? You know, the structure of plants, how they cope with different environments. I think it's really interesting, but I just couldn't remember all the terminology we had to learn. I think that's why I got a lower grade. As for statistics, I've never been any good at maths. So, what did you do best in, and why? Anything that included practical work, getting out into nature and seeing plants growing in the wild. I've been interested in them since I was a small child, though I didn't know what ecology was until my final year at school. When I started studying it, I was hooked. You also mentioned economic botany. Yes, the opposite of ecology in a way, but I'm really worried about the future of our planet and how we're going to be able to feed all of the people, what with climate change and all. I feel, as a botanist, I have a real mission to help some of the world's poorest people. That's great. And now you're thinking of doing a postgraduate degree. Yes, and I was wondering if you have any suggestions. There's a lot to choose from. You said in the questionnaire you filled out earlier that you would like to stay in the local area for personal reasons. Well, I've looked up 4 possible postgraduate courses that may interest you. Ecology, tropical plant ecology, plant cultivation, and also tropical agriculture. Are they all offered by this university? The ecology courses are run here on campus, while the plant cultivation course is run on our out-of-town campus. The tropical farming course is offered by the Farming Institute across town. And they're all 2 semesters? Yes, apart from the tropical farming course, which is 1 semester longer, as you undertake a longer study in a tropical location. Oh, that's good. Is there a lot of field work in all the courses? Yes. Apart from the long study for the tropical farming course, the course in tropical plant ecology has a month-long field trip abroad, while the others have 2 one-week excursions,
with the plant cultivation course having an optional trip to study vineyards in France, as well as shorter 1 or 2 day trips. I imagine that's reflected in the cost. You're right. The tropical farming course is, as you might expect, almost twice the cost of the courses based domestically, while the tropical ecology course is 1.5 times as expensive. Thanks. I'll give all of that some thought. So, what are your plans when you have completed your postgrad? I'm not sure yet. I suppose, ultimately, I'd like to work for the United Nations. Something like the Food and Agricultural Organization. That would be my ideal, but there are so many really good charities, NGOs, and research institutes out there. Sounds good. Well, good luck. Thanks. See you later. ओके सो लिसनिंग सभी ने ये 21 से 30 क्वेश्चंस आई गेस सभी ने कर लिए होंगे. लेट्स डिस्कस दीस क्वेश्चंस नाउ. अब जो मैं समझाऊंगी उसको ध्यान से समझना एंड आपके कितने क्वेश्चन सही गए मुझे कमेंट में जरूर बताना. अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस नंबर 21 से लेके 24 तक हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं एंड हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं. इकोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोनॉमिक बॉटनी है, बायोस्टैटिस्टिक्स है. जब आपको टाइम मिलता है आपने एक बार इसको रीड जरूर करना है. पॉइंट नंबर ए मेंशंस हैड डिफिकल्टी रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे हैड डिफिकल्टी रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन है, हैज ऑलवेज हैड डिफिकल्टीज इन दिस एरिया. इंटरेस्टेड की बात कर रहे हैं, मॉरल की बात कर रहे हैं. सिर्फ आपने यहाँ पे एक्शंस को, वर्ब्स को देखना होता है, कंप्लीट लाइन को नहीं देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने वर्ड्स को मार्क किया इसके ही सिनोनिम्स बोलेंगे. एंड वन थिंग मोर, अगर आप इनको देखो तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर ए है एंड पॉइंट नंबर बी है, ये दोनों पॉइंट्स इसके नेगेटिव की तरफ है. पॉइंट नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आर लिटिल पॉजिटिव. ठीक है, तो 2 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं. अब मैं ऑडियो फिर से प्ले करूंगी एंड अगेन हम साथ ही साथ सीखेंगे कि किसका आंसर क्या था और कैसे आया. राइट, तो सभी ने मेरे साथ इसको फिर से सॉल्व करना है एंड आंसर्स को गेस करने की कोशिश करनी है. Well done for completing your degree, Peter. Well done for completing your degree, Peter. पहले थोड़ी सी हमेशा इंट्रोडक्शन होती है. Were you pleased with your results? Were you pleased with your results? Please मतलब क्या आप अपने रिजल्ट से खुश हो? I was a little disappointed I didn't get the highest grade overall, Were a little disappointed I didn't get the highest grade overall. but I did well in my favourite subjects. But I did well in my favorite subjects. आपने हर एक चीज को ध्यान से सुनना है एंड साथ में कोशिश करना कि छोटे पॉइंटर्स में नोट्स बना लेना. अगर उसने इकोलॉजी का बोला क्या बोला, प्लांट साइकोलॉजी का बोला तो क्या बोला. अब यहाँ पे 1-2 ट्रिक्स और हैं. 2 यहाँ पे उसने एक जो डिफरेंट चीज यहाँ पर इस लिसनिंग में ऐड करी है, न्यू पैटर्न जो आईडीपी लेके आ रहा है, दैट इज ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास समटाइम्स ये ऑर्डर वाइज बोलेंगे ही नहीं. सेकेंडली हमेशा इससे लेके मैच नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को लेके मैच नहीं करेंगे. मे बी पहले ऑप्शंस को बोल दें, उसके बाद उसका सही क्वेश्चन कौन सा मैच हो रहा है मे बी वो बोल दें. तो इन दोनों को आपने ध्यान से नोट करना है. I got a first class grade in those subjects. I'm pleased with that. What were they? So I got first grade and were pleased with that. जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे मुझे उसमें फर्स्ट ग्रेड मिला एंड आई वाज प्लीज्ड विद दैट. अब उसने बोला व्हाट वर दे, कौन से थे? Well, that was ecology and economic botany. That was ecology and economic botany. अब यहाँ पे ट्रिक देखो क्या यूज होगी. That were economy and botany. Sorry, ecology and economic botany. तो जो 21 है 23 है इसमें इसने गुड ग्रेड्स लिए. गुड ग्रेड्स लिए का मतलब क्या हो गया? 21 का 23 के जो आपके आंसर्स रहेंगे या तो उसका सी डी में से रहेंगे. बहुत ही क्लियरली 21 का आंसर एंड जो आपका 23 का आंसर है, 21 का 23 का सी
डी में से रहेंगे आंसर, ये इसने पहले ही बोल दिया। सो ऑब्वियसली बात है, जो आपके बाकी के दो रह गए, प्लांट फिजियोलॉजी 22, बायोस्टैटिस्टिक्स 24, उसका या ए होगा या बी होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में इसने आपको पहले हिंट दे दिया। अगर आपने पहले इसको पढ़ के कैटेगराइज किया होता तो आपको इतनी चीज समझ में आ जाती। अगर आपने चीज नोटिस नहीं करी तो इसको भी आपने नोटिस करना है। टाइम सेविंग टेक्निक्स है, ये कॉमन सेंस एंड ट्रिक्स कोई जरूर आपके काम आएंगी। सो लेट्स रीड, इसके आगे लिसनिंग को, ऑडियो को सुनते हैं। Wasn't very good at biostatistics or I wasn't very good at biostatistics plant physiology. और प्लांट फिजियोलॉजी। तो उसने बोल दिया कि बायोस्टैटिक्स में एंड प्लांट फिजियोलॉजी में वो ज्यादा अच्छा नहीं था। दैट मीन्स 22 एंड 24 के नेगेटिव आंसर आएंगे, जो कि ए या बी में से हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया। Plant physiology? You know, सो प्लांट फिजियोलॉजी, अब ये प्लांट फिजियोलॉजी बोल दिया, मैंने पहले ही कहा था ये ऑर्डर में नहीं बोलेंगे। तो उसने स्टार्टिंग कहाँ से किया, प्लांट फिजियोलॉजी बोल दिया। अब इसमें से आपने मैच करना है, इसका आंसर क्या होगा। the structure of plants, how they cope with different environments. I think it's really interesting, but I just couldn't remember all the terminology we had to learn. I just can't remember all the terminologies we have to learn. I just cannot remember the terminologies. मतलब उसको इंफॉर्मेशन याद करने में प्रॉब्लम आती है। I just couldn't remember terminologies. तो जो उसने आंसर नंबर 22 का बोला, इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग उसने क्या बोला था, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद रिमेंबर, आई हैड डिफिकल्टी रिमेंबरिंग द टर्मिनोलॉजीज, राइट। I think that's why I got a lower grade. As I think that's why I get a lower grade. for statistics, I've never सो अब वो बोल रहा है फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो अब उसने ऑर्डर वाइज नहीं बोले, पहले उसने नेगेटिव वाले लेके बोले। अब वो बोल रहा है फॉर स्टैटिस्टिक्स। been any good at maths. I've been never very good at maths. वो मैथ्स में कभी अच्छा नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको नहीं भी सुनो तो दो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिसमें से ए वाला पॉइंट हो चुका है। तो आपके पास रह कौन सा गया, सिर्फ आपका नेगेटिव बी वाला पॉइंट रह गया। तो जो आपका 24th वाला हो गया, इसका आंसर बी हो गया। दोनों नेगेटिव थे, इसमें कम ग्रेड्स आए थे, तो नेगेटिव वाले पॉइंट्स इसके आंसर आ गए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास इकोलॉजी रह गया है एंड इकोनॉमिक बॉटनी। So, what did you do best in, and what? सो व्हाट डिड यू डू बेस्ट इन। तो बेस्ट किस में किया, इकोलॉजी रह गया हमारा, बॉटनी रह गया। Why? Anything that included practical work, getting out into nature and seeing plants growing in the wild. I've been interested in them since I was a small child. I was interested in them since I was a child. तो इंटरेस्टेड की बात कर रहा है, पहले उसने ये ऑप्शन बोला, पॉइंट बोला। अब इंटरेस्टेड की बात कर रहा है, तो इसमें से या तो आंसर 21 होगा या 24 होगा इसका, सॉरी, या 23 होगा इसका आंसर। Though I didn't know what ecology was until my final year at school, Though I didn't know what ecology was until my final year at the school. तो इकोलॉजी के साथ उसने उसका मैच कर दिया इंटरेस्टेड वाला पॉइंट। तो जो आपका 21 वाला ऑप्शन क्वेश्चन है, इसका आप गया ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके बाद चाहे आप सुनो चाहे आप ना सुनो, जैसे मर्जी कर लो, वेरी ऑब्वियस है, टाइम सेव हो गया। एंड इसका आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा वेरी क्लियरली। बट स्टिल वी विल लिसन टू दी रिकॉर्डिंग। when I started studying it, I was hooked. When I started studying it, I was hooked. तो इकोलॉजी की बात कर रहा था, hooked मतलब होता है कि वो उसके साथ उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। You also mentioned economic botany. You also mentioned economic botany. अब उसने economic botany का पॉइंट ले लिया। अब let's see वो इसको रिफ्रेश कैसे करेगा। Yes, the opposite of ecology in a way, but I'm really worried about the future of our planet and how we're But I'm really worried about the future of our planet. going to be able to feed all of the people, what with climate change and all. I feel, as a botanist, I have a real mission to help some of the world's poorest people. As a botanist, I feel I could help the world's poorest people. तो ये moral dimensions में आ गया। इसका उसने moral dimensions के में अपनी feelings add कर दी कि उसको help करनी चाहिए।
तो इकोनॉमिक बॉटनी का ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। किसके सारे सही थे, किसने ऐसा ही अंडरस्टैंड किया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड किसको क्या प्रॉब्लम्स आई, एंड अभी भी किसको अगर कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैज द फॉलोइंग फीचर्स, किसमें फॉलोइंग फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है, 2-3 क्वेश्चंस में नेगेटिव चीज दी गई है। अब हमारे पास 4 कोर्सेज हैं। फर्स्ट इसके साथ ऑप्शन है 25 इज नॉट लोकेटेड इन द टाउन, जो टाउन में लोकेटेड नहीं है। इज नॉट ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के में से ऑफर नहीं होता है। सबसे लॉन्गेस्ट कोर्स कौन सा है। डज नॉट ऑफर अ ट्रिप अब्रॉड, किस वाले कोर्स में ट्रिप नहीं मिलता है। एंड विच 2 कोर्सेज हैव द सेम फीस, सेम फीस, किन 2 कोर्सेज की फीस जो है वो सेम है। अब आपने अगेन इसको ध्यान से सुनना है, साइड बाय साइड मुझे आपने आंसर्स भी बताने हैं, कितने सही के मुझे जरूर कमेंट में बताना। लेट्स स्टार्ट। That's great. And now you're thinking of doing a postgraduate degree. And now you are thinking to do a postgraduate degree. तो जब वो नेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं तो उसको रेफर जरूर करते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो रिसेंटली आईडीपी कर रहा है अपनी रिसेंट वाली न्यू बुक्स में। पहला चेंज क्या था कि आपको कैम्ब्रिज की जो बुक्स पहले चलती थी 11 to 19, उसमें आपको 21 से 24 के लिए टाइम अलग से मिलता था, लास्ट 5 के लिए टाइम आपको अलग से मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है, ट्रेंड में भी एग्जाम में ऐसा ही हो, आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ करने पड़े, स्टार्टिंग में ही टाइम मिलेगा टू रीड द क्वेश्चन। तो आपने काफी ध्यान से सुनना है। एंड ऑडियो रिपीट नहीं होती है एग्जाम में, तो पहले ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ जो मैं करवा दूं करके रखो इसकी प्रिपरेशन। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो आप मेरा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो। जो मेरा क्रैश कोर्स है इसमें सारी मॉड्यूल्स की आपको ट्रिक्स के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलेगा, आपको वोकैबुलरी की लिस्ट मिलेगी, आपको पीडीएफ की फॉर्म में मटेरियल भी मिलेगा, आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी। एंड ये सारा कुछ आपको मिलेगा एट जस्ट ₹99। एंड फॉर दिस इफ यू वांट टू परचेज माय क्रैश कोर्स, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, कईयों ने इसको लिया है, यूज किया है, एंड दे हैव स्कोर्ड मोर देन दैट डिजायर्ड मैन। एंड फॉर दिस यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and you have to comment me or you have to DM me on my WhatsApp number given on the screen, and we will share the crash course. So now let's listen to the further recording. Yes, and I was wondering if you have any suggestions. There's a lot to choose from. You said in the questionnaire you filled out earlier that you would like to stay in the local area for personal reasons. Well, I've looked up 4 possible postgraduate courses that may I have looked for 4 possible graduate courses that may interest you. तो हमेशा 2-3 लाइंस इंट्रो जरूर होती है, तो आपने अपना फोकस बिल्कुल भी लूज नहीं करना, बिल्कुल फोकस के साथ करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज योर फोकस। अगर आपको ऑडियो सुन रही है, ऑडियो समझ में आ रही है, स्टिल आपके आंसर्स गलत में हो रहे हैं, तो आपको फोकस की प्रॉब्लम है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि जो भी वो पॉइंट को बोले उसके साथ जस्ट इन शॉर्ट में पॉइंटर्स में, शॉर्ट फॉर्म्स में, एब्रीविएशंस में नोट्स बना लो। सबसे इजी मेथड है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप साइड बाय साइड मैच नहीं कर सकते, मेरी आदत है, मुझे पता है सिनोनिम्स बोलेंगे तो मैं साइड बाय साइड मैच कर लेती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, नोट्स बना लो, उसके बाद देखो कौन सा सिनोनिम कहाँ पे यूज किया गया था। हमेशा इसमें सिनोनिम्स की यूज होता है, हमेशा। interest you. Ecology, tropical plant ecology, plant cultivation, and also tropical agriculture. तो अब उसने सारे कोर्सेज के पहले नेम्स बता दिए, अब वो साथ साथ में बताएगी इसके फीचर्स किस में कौन से नहीं है एंड कौन से किस में फीचर्स हैं। लेट्स लिसन वेरी वेरी केयरफुली। Are they all offered by this university? The ecology courses are run here on campus, while The ecology courses are run here in the campus. plant cultivation course is run on our out-of-town campus. The plant cultivation is run on an out-of-town campus. It's run on an out-of-town campus, मतलब not in the town. Plant cultivation का same to same बोला, इसने बोल दिया और out-of-town campus. तो जो आपका 25 है वो सी के साथ मैच कर गया। 25 का आंसर नंबर सी।
तो आगे मतलब ये इसमें ये काफी आईडीपी ये चेंजेस कर रहा है कि आपको ये ऑर्डर वाइज नहीं देते आंसर्स, थोड़े से आपको मिक्सअप हो जाते हैं. The tropical farming course is offered by the Farming Institute across town. The tropical farming course is introduced by the tropical farming area in the town. तो यहाँ पे in the region tropical farming मतलब tropical agriculture. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मतलब आपकी synonyms में दिक्कत है. ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का इसने यहाँ पे सिनोनिम यूज किया ट्रॉपिकल फार्मिंग. अब इसका बोल रहा है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है. And they're all 2 semesters. एंड देयर ऑल 2 सेमेस्टर्स. अब ये मतलब ये लॉन्गेस्ट लेंथ की इसकी बात करने वाला है, लॉन्गेस्ट लेंथ की. Yes, apart from the tropical farming course, which is 1 semester longer, as you undertake a longer study in a tropical location. As you undertake a Oh, that just a second. all 2 semesters. Yes, apart from the tropical farming course, Apart from the tropical farming course, D की बात कर रहा है, which is 1 semester longer, which is 1 semester longer. उसने बोल दिया apart from tropical farming course which is 1 semester longer. 27 का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी. मतलब साथ ही में आपने कर लेने हैं इसको सभी को. as you undertake a longer study in a tropical location. As you undertake a longer study in the tropical region. In the tropical region है, that means not offered by the students university. तो इसका भी आपका आंसर साइड में ही डी आ गया. आपको इसको ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये कोर्स प्रोवाइड होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड नहीं होता. अब हमारे लास्ट 2 हैं, डज नॉट ऑफर अ ट्रिप. ट्रिप किस कोर्स में नहीं है, एंड 2 कोर्सेज जिनकी प्राइस सेम है. ना वन थिंग मोर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, यहाँ पे बताया डज नॉट ऑफर अ फील्ड ट्रिप, मतलब यहाँ चारों में से कोई एक कोर्स ऐसा है जो आपको फील्ड ट्रिप जो अब्रॉड है वो नहीं देता. बाकी 3 देंगे, एक नहीं देगा. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, रिकॉर्डिंग में वो 3 बता देगा जो आपको ट्रिप्स जिसमें मिलते हैं, तो एक उसका रेफर करेगा ही नहीं क्योंकि उसके ट्रिप्स मिलते ही नहीं है. तो वो आपने ऑटोमेटिकली गेस करना है अगर उसका नाम नहीं लिया तो. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ लिसन टू द ऑडियो. Oh, that's good. Is there a lot of field work in all the courses? Is there a lot of field work in all the courses? Yes, Yes. सभी में उसने yes बोला. आगे सुनो. apart from the long study for the tropical farming course, Apart from the long study in the tropical farming course, तो tropical farming course बोल दिया, जो वो बोले उसको साथ ही में क्रॉस आउट कर देना आपने कि इसमें फील्ड ट्रिप है. the course in tropical plant ecology has a The course in tropical plant ecology भी बोल दिया उसने, तो ये भी कर दो एलिमिनेट. यहाँ पर भी फील्ड ट्रिप मिलेगा. the month-long field trip abroad, while the others A month-long field trip abroad. have 2 one-week excursions, with the plant cultivation course having an optional प्लांट कल्टीवेशन कोर्स का भी रेफर कर दिया, तो ये भी कर दो एलिमिनेट. तो ऑब्वियसली जो आपका रह गया ऑप्शन नंबर ए रह गया. सो दैट मींस जो आपको ट्रिप फील्ड अब नहीं रेफर करता वो आ गया ऑप्शन नंबर आपका ए. अभी इसके आगे थोड़ा सा और सुनना. trip to study vineyards in France, as well as shorter 1 or 2 day trips. फ्रांस में ट्रिप मिलेगा, शॉर्टर 1 days एंड 2 days ट्रिप मिलेंगे. इसने तीनों की बात कर दी, इकोलॉजी की बात नहीं करी. तो तीनों में फील्ड ट्रिप्स मिलते हैं. अगर एक की बात नहीं हुई तो इसमें फील्ड ट्रिप नहीं मिलता है. इसीलिए 28 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. ये नई चीजें ऐड करी हैं, न्यू आईडीपी की लिसनिंग है. मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आपने जरूर करना है. इसका सेक्शन 1 सेक्शन 2 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. इसका लिंक वीडियो की एंडिंग में डाल दूंगी. एंड ये सेक्शन नंबर 3 है, कल सेक्शन नंबर 4 आएगा ये सेम लिसनिंग का. ये आपकी लिसनिंग कल तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी एक सीरीज बन जाएगी. आई विल मेक अ प्लेलिस्ट. अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक सीरीज इस लिसनिंग की 4 वीडियोस है, इसको जरूर देखना. आपका बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है. सो लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन व्हिच 2 कोर्सेज हैव द सेम फीस. अब इसमें भी ऐसा सिमिलर ही पैटर्न फॉलो हो सकता है जो आपके अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था.
I imagine that's reflected in the cost. You're right. I imagine that's reflected in the cost. मतलब फीस की बात यहाँ पे कर रहा है. The tropical farming course is, as अब यहाँ पर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ट्रॉपिकल फार्मिंग की बात कर रहा है. क्या उसकी प्राइस है? लेट्स लिसन. you might expect, almost twice the cost of the courses based domestically. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्वाइस द कॉस्ट बोल दिया. तो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की ऑलमोस्ट ट्वाइस द कॉस्ट जो आपको डोमेस्टिकली मिलते हैं कोर्सेज, इसकी बात कर दी है ऑलमोस्ट ट्वाइस. सेम कौन से कोर्सेज हैं आपने ये बताना है. While the tropical ecology course is While the tropical ecology course, tropical ecology वो बी की बात कर रहा है. 1.5 times as expensive. 1.5 टाइम एज एक्सपेंसिव. मतलब उसने जो 2 रेफर नहीं किए, ए रेफर नहीं किया, सी रेफर नहीं किया, तो दैट मीन्स ए एंड सी की जो प्राइस है वो सेम है. तो 29 एंड 30 का आंसर ए एंड सी इन एनी ऑर्डर. सो आई गेस आपको आज की लिसनिंग जो 21 से 30 तक क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे. आपने कैसे ट्रिक्स लगानी है, अपना कॉमन सेंस यूज कैसे करनी है, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना है, एंड आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. आई होप आपको वीडियो से आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू कंसीडर लाइक, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड डू रेफर दिस चैनल टू अदर्स आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IELTS. एंड सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 की वीडियोस आपके सामने है. इसको इग्नोर मत करना, इसको भी जरूर देखना. न्यू IDP की लिसनिंग है फ्रॉम द कैम्ब्रिज IDP IELTS. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर IELTS एग्जाम. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. सेक्शन 4 इसका कल आएगा. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very very best for IELTS एग्जाम. प्रेडिक्शन की वीडियो आएगी फॉर 5 जुलाई, मंडे को वीडियो आ जाएगी. तो प्रेडिक्शंस को जरूर फॉलो करा करो. हमारे प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज 100% करेक्ट. सो स्टे ट्यून्ड विद मी.